Very good morning, everyone. Today I have taken the important topic of anesthesia, that is the local anesthetics. So we will be discussing what are the various types of local anesthetics and where it is used and what are the techniques of using these local anesthetics. First of all, one scientist whose name is Heinrich Braun. He is also known as the father of local anesthetic because he has discovered many of the things related to local anesthetics, like the discovery of the adding the vasodilators, adding the vasoconstrictors to the local anesthetics. So Sir Heinrich Braun is the father of the local anesthetic. So anesthetics we can divide into two. Basically, one is the general anesthetics and one is the local anesthetics. Today we are confining to the local anesthetics part only. And one local anesthetic, why we are calling this local anesthetic? Because site of action is locally on the peripheral nerves. And when the site of action is in the CNS, then we call it as a general anesthetics. So let us discuss let us see the definition of local anesthetics. Definition is the reversible loss of sensation, because as the duration passes, this sensation will come back again, and sensory or motor, so sensory can be disturbed or motor or both can be disturbed without the loss of consciousness. When we give the local anesthetic, there is no loss of consciousness and without loss of control of vital function, and we can give the local anesthetic either topically, we can apply the topically, or we can infiltrate. We will see the infiltration part also of the local anesthetics. So coming to the next slide, the structure of local anesthetic is important. This is the chemical structure of local anesthetics. We have the two group. One is the hydrophobic group and one is the hydrophilic group in the other end. And the intermediate part is this linkage, which we call as the amide linkage or the ester linkage. If there is NH group, this is the amide linkage and this is the ester linkage. This is important thing. The structure is important because we are classifying the local anesthetic according to this structure only. What is the importance of hydrophobicity or hydrophilicity? So the hydrophilic and the hydrophobic moiety, they are separated by intermediate ester. The importance of hydrophobic is the more hydrophobic the drug is. This is the hydrophobic or the lipophilic part. The more hydrophobic, जितना ज़्यादा hydrophobic होता है, उतना ज़्यादा उसकी potency और duration उसका बढ़ जाता है. So this is why the chemical structure is important. That's why इसीलिए chemical structure की slide लगाई है. Chemical structure से हमें इसका classification भी समझ में आ जाएगा कि classify कर सकते हैं according to the ester और according to the amide. एक important चीज और याद करने की है कि esters में कौन कौन से local anesthetics हैं and amides में कौन कौन से local anesthetics हैं. You can remember this with the ester is having the one eye. जितने भी लोकल एनेस्थेटिक होंगे उसमें एक आई होगा, दैट इज द एस्टर. अगर एक आई होगा तो एस्टर है, और अगर अमाइड है तो उसमें टू आई होंगे, मतलब नाम में टू आई होगा. लेट अस सी दिस कोकेन, प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन. यू कैन सी ओनली वन आई, सिंगल आई इज प्रेजेंट इन ऑल दिस, तो एस्टर है. और अगर दो आई होगा तो वो अमाइड होगा. देखिए आप, लिग्नोकेन, bupivacaine, mepivacaine, ropivacaine. Lidocaine is also known as lidocaine. This was the first local anesthetic which was discovered later on. Lidocaine is very important local anesthetic. We will see to this also. So ester is having the one eye and the ester is the intermediate linkage is this one, the ester, or amide में intermediate linkage is this one. So that's why it is the amide group of local anesthetics. Okay, अब ये समझ में आ गया. तो एस्टर और अमाइड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, और भी फार्माकोकाइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है एस्टर्स और अमाइड के बीच में. एस्टर्स जो होते हैं वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं बाय प्लाज्मा स्ट्रेसिस. तो प्लाज्मा में जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें एस्ट्रेसिस प्रेजेंट है और वो एस्टर्स को मेटाबोलाइज कर सकते हैं, अमाइड को नहीं. इसीलिए एस्टर्स का एक्शन जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है, क्योंकि प्लाज्मा स्ट्रेस से मेटाबोलाइज हो जाते हैं. अमाइड का जो एक्शन होता है वो लॉन्ग, थोड़ा सा देर तक रहता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है. अमाइड मेटाबोलाइज होता है लीवर से. दैट्स व्हाई we have to take care of amide part when we are giving in dearranged LFT.
मतलब अमाइड जितने भी एनेस्थेटिक्स हैं, जैसे लिग्नोकेन आपको देखा था, लिग्नोकेन वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट अगर रीअरेंज एलएफटी है तो। एस्टर्स में रीअरेंज एलएफटी हो तो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द थिंग। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ज्यादा कॉमन एस्टर्स से होती है, अमाइड से कम होती है। एस्टर्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग नेग्लिजिबल होता है, अमाइड्स में बाइंड विद द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। So differences is important because pharmacokinetic differences है, तो पेशेंट टू पेशेंट इसीलिए डिफर करता है कि क्या ड्रग दी जाए। अगर LFT रीअरेंज है तो we don't go with the amide, go with the esters. Okay? This is another classification. We can classify the local anesthetic into two part again: injectable, where we are giving the injection or infiltration, and when we are topically applying the surface anesthetic. This is the low potency, intermediate potency, and high potency. So this is the classification. So that one classification, ester and amide, that you have to remember it very thoroughly. Now coming to the mechanism, how this local anesthetic is acting. First of all, local anesthetic is acting on the sodium channel. सोडियम चैनल पे एक्ट कर रही है, और सोडियम चैनल पे कहाँ पे उसका रिसेप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर की तरफ रिसेप्टर है, ट्रांस मेम्ब्रेन यहाँ पर रिसेप्टर है अंदर की तरफ। तो लोकल एनेस्थेटिक को बाहर से अंदर आना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे बाइंड कर पाएंगे। कोई भी ड्रग लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, पहले बाहर से अंदर आना पड़ेगा, तब जाके बाइंड कर पाएंगे। अगर ये बाइंड नहीं है, एक्टिवेशन गेट अगर 3 स्टेट में सोडियम चैनल रहते हैं, रेस्टिंग स्टेट, एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड स्टेट। पहले ये 3 स्टेट में रहते हैं। अगर ये रेस्टिंग स्टेट में है तो सोडियम अंदर नहीं जा रहा है, और लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर लोकेटेड ट्रांसमेम्ब्रेन, ये मैंने बता दिया। रेस्टिंग स्टेट मतलब सोडियम इज नॉट कमिंग इनसाइड, सोडियम इज अ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में जब आएगा तब डीपोलराइजेशन होता है, इसीलिए रेस्टिंग लिखा हुआ है, अभी डीपोलराइजेशन नहीं हुआ है। दूसरा में देखिए, एक्टिवेटेड में सोडियम देख रहे हैं आप, उसकी सोडियम इज कमिंग इनसाइड, पॉजिटिव आयन है, सोडियम अंदर आ रहा है, तो ये जो है एक्टिवेटेड हो गया। तो मतलब पॉजिटिव आयन अंदर चला गया, डीपोलराइजेशन हो गया, दैट इज व्हाई एक्टिवेटेड। तीसरा आप देखिए, इनएक्टिवेटेड और ब्लॉक्ड स्टेट। यहां पर क्या हो रहा था, लोकल एनेस्थेटिक मैंने बोला था, लोकल एनेस्थेटिक जो है पहले अंदर आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकल एनेस्थेटिक जो अंदर आता है वो कौन सा आपको दिख रहा है, वो आयनाइज्ड है कि अनआयनाइज्ड है? दिस इज अनआयनाइज्ड। अनआयनाइज्ड लोकल एनेस्थेटिक ही अंदर आ सकता है, आयनाइज्ड वाला कैन नॉट एंटर द इनसाइड द सेल। तो एक जनरल फार्माकोलॉजी में एक रूल हम लोग पढ़ते थे, आईपीएल इंडिया, एक फॉर्मूला बनाया था मैंने, आईपीएल इंडिया जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट है। आईपीएल मतलब आयोनाइज्ड, और पी मतलब पोलार, एल मतलब लिपिड, और आईएन मतलब इनसॉल्युबल। इस समय आईपीएल चल भी रहा है, यू आर सीइंग द आईपीएल आल्सो। तो आईपीएल इंडिया से है, आयोनाइज्ड अगर पोलार ड्रग है, आयोनाइज्ड है और पोलार ड्रग है, वो लिपिड इनसॉल्युबल होती है। मैं यहाँ कह रहा हूं कि अनआयोनाइज्ड, इसी का उल्टा कर दीजिए, तो अनआयोनाइज्ड होगी अगर, तो वो लिपिड सॉल्युबल होगी। तो अनआयोनाइज्ड है बी, इसीलिए वो लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। लेकिन जो बाइंड करता है वो आयोनाइज्ड पार्ट बाइंड करता है, तो फिर से वो आयोनाइज्ड में कन्वर्ट हो गए और यहाँ पे बाइंड कर जाएगा लोकल एनेस्थेटिक। जब लोकल एनेस्थेटिक यहाँ बाइंड करता है तो ये गेट जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और जब ये बंद हो जाएगा तो सोडियम कैन नॉट एंटर इनसाइड द सेल। तो मतलब सेल फिर से सेल इनएक्टिवेटेड स्टेट में हमेशा पड़ी रहेगी, इनएक्टिवेटेड स्टेट में डीपोलराइजेशन नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो मतलब एक एनेस्थीसिया हो जाएगा, एनेस्थेटिक इफेक्ट आएगा, दैट्स व्हाई। तो स्लाइट डीपोलराइजेशन कॉजेस ट्रांजिएंट इंक्रीज इन सोडियम परमेबिलिटी, सोडियम अंदर जाता है, और इनएक्टिवेटेड अनआयोनाइज्ड फॉर्म क्रॉसेस द मेम्ब्रेन। दिस वाज आई वाज सेइंग, अनआयोनाइज्ड फॉर्म अंदर क्रॉस कर रहा था, एंटर द चैनल फ्रॉम इनसाइड एंड बाइंड विद द रिसेप्टर। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच और पीकेए। आयोनाइज्ड मतलब ये तो बात है कि अनआयोनाइज्ड अंदर जाना चाहिए। अनआयोनाइज्ड कब रहेगा, जब पीएच, जब पीकेए अगर कम रहेगा, किसी ड्रग का पीकेए अगर कम रहेगा और पीएच भी कम है, ब्लड का पीएच 7.4 है, पीएच और पीकेए अगर सेम रेंज में रहेगा तो अनआयोनाइज्ड पार्ट ज्यादा रहेगा। ये जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट है, अनआयोनाइज्ड पार्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि पीएच और पीके अगर सेम रेंज में रहेगा तो अनआयोनाइज्ड आराम से एंटर कर जाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है ड्रग्स जो लोअर पीके जिनकी लोअर पीके होगी वो आराम से एंटर कर सकती है और जल्दी एक्शन उनका आएगा। लिग्नोकेन जैसे, लिग्नोकेन का पीके, ड्रग का पीके की बात कर रहे हैं, और ड्रग का पीके और मीडियम का पीएच अगर वो सेम होगा
तो ड्रग अनआयनाइज्ड रहेगी, और अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो टूट जाती है ड्रग, ठीक है। तो सो फास्टर एक्शन सी, सो दिस इज क्लियर थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि अनआयनाइज्ड पार्ट जो होगा वही एंटर करता है, और सोडियम चैनल का जो रिसेप्टर है वो कहाँ लोकेटेड है, ट्रांसमेम्ब्रेन में इनसाइड पे, तो ड्रग को अंदर आना पड़ेगा तब जाके बाइंड करेगी। हम दे रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक, लोकल इफेक्ट आना चाहिए, लेकिन ड्रग एब्जॉर्ब भी हो जाती है इनटू द सर्कुलेशन। अगर एब्जॉर्ब हो गई तो इफेक्ट कर सकती है, अगर सीएनएस इफेक्ट हो गया तो कॉज स्टिमुलेशन, सीएनएस इफेक्ट अगर होगा तो कॉज स्टिमुलेशन, ब्लॉकेज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन फॉलोड बाय डिप्रेशन, स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट करेगी लोकल एनेस्थेटिक? आप जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एरिथमियाज पढ़ेंगे उसमें लोकल एनेस्थेटिक का एक क्लासिफिकेशन में लोकल एनेस्थेटिक्स भी होती हैं, लिग्नोकेन भी है उसमें। तो इट इज एन एंटी एरिथमिक ड्रग, लेकिन कार्डियक डिप्रेसेंट एट हाई डोज कैन बी यूज्ड एज एंटी एरिथमिक ड्रग एक्सेप्ट बुप्रीविकेन व्हिच इज बुप्रीविकेन इज अ कार्डियोटॉक्सिक, तो इट कैन कॉज फॉल इन द बीपी। कोकेन, लेकिन कोकेन लोकल एनेस्थेटिक था, एस्टर ग्रुप, वो फॉल इन द बीपी नहीं करता, क्योंकि कोकेन का मैकेनिज्म एक और है, वो इनडायरेक्ट सिम्प्टोमाइमेटिक है, वो इनहिबिट करता है रीअपटेक को, जो कैटेकोलामीन का रीअपटेक है उसको इनहिबिट करता है। दैट्स व्हाई कोकेन से कैटेकोलामीन ज्यादा रहेगा तो बीपी ज्यादा हो जाएगा, तो कोकेन से बीपी कम नहीं होता। दैट वो लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी। व्हाट वाज द वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक? व्हेन वी आर अप्लाइंग द लोकल एनेस्थेटिक तो लोकली कुछ एडवर्स इफेक्ट होगा, लोकल अगर लगाएंगे तो लोकल में भी कुछ एडवर्स इफेक्ट होगा, कुछ सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट भी होता है। लोकल में सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट जो दिखाया जाता है वो है कि कोई लोकल में इरिटेंसी, लोकल में कुछ लोकल इरिटेंसी अमंग लोकल एनेस्थेटिक, बुप्रीविकेन सबसे ज्यादा नोटोरियस होता है, तो इरिटेंसी कर सकता है, तो लोकल एनेस्थेटिक का यही एडवर्स इफेक्ट है लोकल में। लेकिन अगर लोकल एनेस्थेटिक एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड से तो सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट होगा। सिस्टमिक इफेक्ट जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, उतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट उसका आएगा। अदर एडवर्स इफेक्ट सीएनएस में गया तो सीएनएस में हम लोग पढ़ चुके थे, पहले स्टिमुलेशन फिर डिप्रेशन। तो सीएनएस में लो डोज ड्राउजीनेस, रेस्टलेसनेस, विजुअल एट हाई डोज रेस्टलेसनेस, ट्रेमर, कन्वर्जन्स में भी सीरियस में एंटी एरिथमिक, लेकिन अगर ज्यादा चला गया तो डिसएरिथमियाज भी कर सकते हैं, हाई डोज में डिसएरिथमियाज भी कर सकते हैं। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन मोर कॉमन विद द एस्टर्स ग्रुप ऑफ ड्रग, एस्टर्स ग्रुप ऑफ ड्रग से हाइपरसेंसिटिविटी ज्यादा होगा, हाइपरसेंसिटिविटी इन द फॉर्म ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म, डायरेक्टाइटिस, एनाफाइलेसिस। मेथिमोग्लोबिनीमिया भी दिखता है कुछ ड्रग से ही, प्राइलोकेन और बेंजोकेन। क्यों? क्योंकि उसका मेटाबोलाइट जो था वो मेथिमोग्लोबिनीमिया करता है, तो दैट्स व्हाई प्राइलोकेन एंड बेंजोकेन रिस्पांसिबल फॉर द मेथिमोग्लोबिनीमिया पार्ट। नाउ कमिंग टू द इंडिविजुअल लोकल एनेस्थेटिक। सबसे पहले लोकल एनेस्थेटिक आई थी कोकेन, वेरी कोकेन आई थी, और कोकेन को सब जानते हैं, इट्स अ वेरी अब्यूज्ड ड्रग, पार्टी वार्टीज में बहुत कोकेन का यूज है। तो कोकेन कहाँ से डिराइव होती है? फ्रॉम प्लांट से, लीव से, प्लांट एरिथ्रोजाइलोन कोका, तो एक प्लांट है एरिथ्रोजाइलोन कोका, उसके लीव से डिराइव होती थी कोकेन। कोकेन का मैंने बताया था कि कोकेन रीअपटेक को इनहिबिट करता है, कैटेकोलामीन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है। जब कैटेकोलामीन रीअपटेक नहीं होगा, कैटेकोलामीन नीचे रहेगा तो वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट आएगा कैटेकोलामीन के कारण, तो लोकल एनेस्थेटिक एंड वैसोकंस्ट्रिक्टर एक्शन कोकेन का होता है। कोकेन ड्रग ऑफ अब्यूज क्यों है? क्योंकि वो यूफोरिया ज्यादा करती थी, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी कोकेन का ज्यादा ऑन क्रोनिक यूज। कोकेन अगर फीमेल प्रेग्नेंट लेडी अगर लेती है इन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो बेबी में जो सिंड्रोम होता है दैट इज कॉल्ड कोकेन बेबी, उसमें ब्रेन साइज कम हो जाता है एंड लिम्फ मालफॉर्मेशन भी देखा जाता है। नॉट यूज्ड एज बिकॉज ऑफ इतने these side effects, cocaine is now not used as a local anesthetic part. हमारे पास और भी अच्छी ड्रग है लिग्नोकेन, द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग और वेरी यूजफुल ड्रग फॉर द लिग्नोकेन। लिग्नोकेन का एक आपने देखा फास्ट एक्शन होता है, क्योंकि उसका पीके कम था, आराम से सेल के अंदर चली जाती थी, तो लिग्नोकेन आल्सो नोन एज लिडोकेन। तो इट्स अमाइड ग्रुप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, सिंगल आई है, अमाइड ग्रुप है, वाइडली यूज्ड एंड प्रेफर्ड, फर्स्ट चॉइस फॉर सरफेस एंड इंजेक्शन। तो हर जगह लिग्नोकेन को ही ज्यादातर यूज किया जाता है, सरफेस एनेस्थेटिक में भी लिग्नोकेन है। रैपिड ऑनसेट है, क्यों रैपिड ऑनसेट? देखिए हमने एंटर कर रही थी, एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है, क्योंकि ये अमाइड ग्रुप ऑफ ड्रग थी, एस्टर नहीं थी, अमाइड ग्रुप ऑफ ड्रग थी, इसीलिए लॉन्ग लास्टिंग है। एस्टर होती तो प्लाज्मा एस्टर से मेटाबोलाइज जाती।
यूजेस, लिग्नोकेन को कहाँ यूज करते थे? एक लोकल एनेस्थेटिक में यूज कर रहे हैं, एक अभी हमने आपको बताया था जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एज एंटी एरिथमिक भी है इसका रोल। एंटी एरिथमिक की क्लासिफिकेशन में लिग्नोकेन का नाम है। रेजिस्टेंट केसेस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिक, अगर एपिलेप्सी स्टेटस एपिलेप्सी नहीं ट्रीट हो रही है विद द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स तो रेजिस्टेंट केस में ये। इंट्रैक्टेबल कफ नहीं ट्रीट हो रहा है, एग्जांपल इन ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, इन दैट आल्सो द रोल ऑफ लिग्नोकेन। सो दीस आर द 4 यूजेस ऑफ लिग्नोकेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई लिग्नोकेन अलोंग विद द वैसोकंस्ट्रिक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि लिग्नोकेन के साथ वैसोकंस्ट्रिक्टर क्यों। तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करेंगे। तो वैसोकंस्ट्रिक्टर कौन-कौन से वैसोकंस्ट्रिक्टर यूज कर सकते हैं? वैसोकंस्ट्रिक्टर में हम यूज कर सकते हैं लिग्नोकेन के साथ एड्रेनालिन इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर, लेकिन और कौन सी वैसोकंस्ट्रिक्टर और फिनाइलेफ्रिन भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिनाइलेफ्रिन भी यूज कर सकते हैं। लिग्नोकेन ऐसा नहीं है कि अलोन इफेक्टिव नहीं है, अलोन आल्सो इट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव, लेकिन अगर इसके साथ वैसोकंस्ट्रिक्टर देते हैं तो उसका इफेक्ट और बढ़ जाता है, दैट वी विल सी। वैसोकंस्ट्रिक्शन एड्रेनालिन यूज कर सकते हैं, फिनाइलेफ्रिन यूज कर सकते हैं और फेलिप्रेसिन। फेलिप्रेसिन अगर कोई फेलिप्रेसिन कहाँ यूज करना है? फेलिप्रेसिन जो है हम कहाँ यूज कर सकते हैं? अगर कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं तो इन दैट फेलिप्रेसिन इज मच प्रेफर्ड अगर लिग्नोकेन के साथ वैसोकंस्ट्रिक्टर ऐड करना है तो। अदरवाइज फिनाइलेफ्रिन एंड एड्रेनालिन आर वेरी कॉमनली यूज्ड। तो ये 3 पॉइंट हैं क्यों लिग्नोकेन के साथ वैसोकंस्ट्रिक्टर। लिग्नोकेन के साथ अब वैसोकंस्ट्रिक्टर हो गई, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो ड्रग सिस्टेमिक इफेक्ट में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में धीरे धीरे जाएगी तो एक्शन उसका प्रोलॉन्ग हो जाएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में धीरे धीरे जाएगी तो टॉक्सिसिटी भी कम करेगी, तो रिड्यूस सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। और वैसोकंस्ट्रिक्टर की वजह से ब्लड बाहर ज्यादा नहीं आएगा तो ब्लडलेस फील्ड मिलेगी सर्जन्स को भी हेल्पफुल रहेगा। दिस इज द थिंग विद द व्हाई लिग्नोकेन विद द वैसोकंस्ट्रिक्टर। नाउ कमिंग टू द वेरियस यूजेस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक को मैंने बताया सरफेस एनेस्थेटिक, सरफेस में यूज कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं, तो ये सब देखेंगे। सरफेस एनेस्थेटिक्स में बहुत कॉमनली यूज होती है और बहुत जगह यूज होती है। तो एक चार्ट हम देख लेते हैं, उस चार्ट से सब क्लियर हो जाएगा कि कहां कहां सरफेस एनेस्थेटिक यूज होती है। देखिए चार्ट, आईवी कैनुलेशन करना है, एक एमला आता है, वो भी देखेंगे, एक एमला का एक स्लाइड है मेरे पास। एमला आता है तो वो एमला पहले लगा दीजिए, फिर आईवी कैनुलेशन आराम से कर सकते हैं, दर्द नहीं होगा। अल्सर्स में जैसे टेट्राकेन, अल्सर्स और बर्न्स होता है उसमें बहुत पेन होता है तो उसमें टेट्राकेन 1% क्रीम आती है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, जब हर्पीज इंफेक्शन होता है उसके बाद न्यूरैल्जिया का कंपोनेंट जो होता है उसके लिए भी लिग्नोकेन है। टोनोमेट्री अगर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को यूज करना है तो टेट्राकेन 1.1-2% ड्रॉप आती है। अगर ईएनटी में नेजल पॉलिप्स या पेन है तो लिग्नोकेन टेट्राकेन आता है। सोर थ्रोट अगर है तो बेंजोकेन का स्प्रे भी आता है। इंटुबेशन जब अप्लाई किया जाता है तो उसमें भी कुछ जली लगा के कराया जाता है ताकि दर्द ना हो और आराम से पाइप अंदर चली जाए, तो लिग्नोकेन टेट्राकेन। पेन ड्यू टू इसोफेजाइटिस, डायलेटेशन जब कैथेटर हम डालते हैं तो भी एक जली लगा देते हैं कैथेटर के ऊपर ताकि पेन ना हो, तो लिग्नोकेन की जली आती है। प्रोक्टोस्कोपी जब करना होता है, पर एग्जामिनेशन करना होता है तो भी एक जली आती है, लिग्नोकेन ड्यूड। लिग्नोकेन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, लिग्नोकेन की जली, लिग्नोकेन सरफेस एनेस्थेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीस आर द वेरियस यूजेस ऑफ सरफेस एनेस्थेटिक, कौन कौन सी ड्रग है वो भी लिख दिया इसमें। नाउ कमिंग टू द एमला की बात करते हैं। बहुत अच्छी ड्रग है ये एमला, यूटैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। 2 लोकल एनेस्थेटिक को हम अभी तक बता रहे थे आपको, एनेस्थेटिक के साथ वैसोकंस्ट्रिक्टर को ऐड कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूं कि 2 एनेस्थेटिक को एक साथ ऐड कर रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक। क्यों ऐसा कर रहे हैं? लोकल एनेस्थेटिक है ना, लोकली तो रहेगा, ऊपर ही रहना चाहिए, अंदर तो जाएगा नहीं लोकल एनेस्थेटिक। लेकिन अगर थोड़ा सा हमें अंदर अगर भेजना है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे दीजिए, थोड़ा सा अंदर जाएगा, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब आप कैनुला लगाओगे तो पेन नहीं होगा, ठीक है। तो यूटैक्टिक मिक्सचर क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। जब हम दोनों ड्रग एक साथ कंबाइन कर देते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो स्किन के अंदर आराम से पेनिट्रेट कर जाती है। बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगी, थोड़ा सा पेनिट्रेट कर पाएगी, ठीक है। अगर अलोन कंपाउंड होगा तो वो पेनिट्रेट नहीं कर। लोकल एनेस्थेटिक को कभी भी आप जैसे अगर कोई जॉइंट पेन हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है, तो जैसे कोई घुटने का पेन है
यू कैन नॉट अप्लाई द लोकल एनेस्थेटिक और पेन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक ऊपर ही रहती है, वो नीचे नहीं जाती है। ठीक है, कितना पेनिट्रेशन इसका हो, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन देंगे अप टू 0.5 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट ड्रग कर सकती है। और एनेस्थीसिया तभी हम कहते हैं इज प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द टॉपिकल टाइप एंड द इन्फिल्ट्रेशन टाइप। टॉपिकल और इन्फिल्ट्रेशन दोनों के बीच की पार्ट है। अच्छा, यही बात कह रहे हैं तुम्हें, चिल्ड्रंस है, अब उनमें बहुत कैनुला डालना मुश्किल होता है, कैनुला नहीं डालने देते, तो ये यूटेटिक मिक्सचर लगाया और आराम से उसको पेन अब नहीं होगा, तो कैनुलेशन कैन बी डन इजीली। तो कॉम्बिनेशन अवॉइडेड मीन म्यूकस मेम्ब्रेन। क्यों? अब स्किन डिन्यूडेड है, स्किन टूटी हुई है, स्किन खरोच है, अब उसमें लगा देंगे तो तुरंत एब्जॉर्प्शन हो जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, इसीलिए ये लिखा है कि अवॉइडेड इन म्यूकस मेम्ब्रेन और डिन्यूडेड स्किन। एक डायग्राम देख लीजिए, ये एमला का है, ऐसे पैच टाइप का आता है, जैसे पैच अलग अलग आते हैं, स्कोपोलामीन का पैच जैसे आता था, वैसे ये पैच आता है, इसमें ड्रग होती है और ड्रग नीचे चली जाएगी अप टू 0.5 mm तक, और फिर आराम से कैनुलेशन कर सकते हैं। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया होता है, जैसे डेंटल प्रोसीजर जब करवाते हैं हम लोग, तो उसमें एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, क्योंकि वहां की जो नर्व है, वहां की नर्व को हमें एनेस्थेटाइज करना है, तो सबक्यूटेनियसली, इंट्राडर्मली और सबम्यूकोजली देना है। ब्लॉक्स द सेंसरी नर्व एंडिंग्स। अमाइड लिंक जनरली यूज्ड, अमाइड लिंक जनरली यूज किया जाता है फॉर माइनर ऑपरेशंस लाइक इंसिजन, हाइड्रोसिल, हर्नियोटोमी, तो एस्टर्स आर नॉट प्रेफर्ड। तो दिस इज द इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। और कौन से हैं? कंडक्शन ब्लॉक, दिस इज द अगेन वी आर टारगेटिंग द नर्व्स ओनली, लेकिन हम पर्टिकुलर नर्व के अराउंड इंजेक्ट कर रहे हैं, तो फील्ड ब्लॉक एंड नर्व ब्लॉक्स दो अलग अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बाकी, लेकिन मोर और लेस सेम है। इंजेक्टेड ऑल द नर्व कमिंग टू द पर्टिकुलरली फील्ड्स आर ब्लॉक। यहाँ पे अराउंड द नर्व ट्रंक, एक नर्व ट्रंक, लेकिन बहुत प्रिसीजन बहुत चाहिए। If the डॉक्टर हु इज डूइंग अगर प्रिसाइज नहीं है, उसको पता नहीं है कि कौन सी नर्व जा रही है, तो वो इंजर कर सकता है, तो नर्व की इंजरी नहीं होनी चाहिए। लार्ज एरिया एनेस्थेटाइज्ड, used for scalp stitching, appendectomy, used for operation on eye trauma rapes। ये नर्व ब्लॉक का डायग्राम है, अलग अलग, जैसे आईज के अराउंड जो नर्व जा रही है, अगर इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक कर दिए तो यहाँ का एनेस्थेटाइज हो जाएगा पोर्शन, सुप्राऑर्बिटल अलग अलग है। एक और है रेट्रोबल्बर नर्व ब्लॉक, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ज्यादातर आपको यही यूज दिखेगी हर जगह, हर ओटी में स्पाइनल एनेस्थीसिया जरूर होता है। स्पाइनल, वी आर गिविंग इन द स्पाइनल कॉर्ड, वी आर नॉट टचिंग द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हम स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर दे रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान देनी है, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले पार्ट में दे रहे हैं, नीचे, और इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? सीएसएफ। तो वी आर गिविंग इनटू लोकल एनेस्थेटिक इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पहली बात तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी डैमेज हो जाए स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई या लग भी गया उसको, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो लोकेशन L2 L3 और L3 L4, ज्यादातर पेशेंट्स में द स्पाइनल कॉर्ड एंड्स इनटू द, ये L2 L3 के ऊपर ही स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है, तो लंबार रीजन जो सेकंड और थर्ड लंबार वर्टिब्रा है उसके ऊपर। तो वी आर ट्राइंग टू गिव बिटवीन द L2 L3 और L3 L4 स्पेस द स्पाइनल एनेस्थीसिया तो ब्लॉक्स द नर्व रूट इन द कॉर्डा इकोना, और जो नर्व रूट यहां से नीचे फिर फ्लो कर रही है वो ब्लॉक हो जाएगी। अच्छा, जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो क्या ये जो लोकल एनेस्थेटिक है वो ऊपर नहीं जा सकती? ऑब्वियसली जा सकती है, वो और जगह भी जा सकती है, लेकिन हमको उसको रोकना होता है, क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर जाएगी उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा। तो क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं हाइट ऑफ ब्लॉक को, वो अभी इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले हम ये देख लें कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है स्पाइनल एनेस्थीसिया में। बुपिविकेन है, डिबुकेन है, लिग्नोकेन है, टेट्राकेन। एक चार्ट बना दिया मैंने, ये इसका ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक है, डोज भी है, वॉल्यूम भी है। सबसे कम ड्यूरेशन देखिए 1 to 1.5 आवर लिग्नोकेन का है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई सर्जरी है, स्पाइनल एनेस्थीसिया मेनली कब देते हैं? जो पेल्विक सर्जरी जब होती है,
जब तो या गायनेकोलॉजिकल सर्जरी जब होती है तो वहां पे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं जनरली कॉमनली। तो लिख लो कि तो अगर नीचे का ब्लॉक करना है तो दैट वी आर यूजिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया, मतलब नीचे से ब्लॉक होगा और ऊपर पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, पेशेंट कैन सी, तो कॉन्शियस रहता है। लिख लो कि तो 1 to 1.5 आवर्स तक ड्यूरेशन है इसका। बुप्रीपिकेन का देखिए ड्यूरेशन ज्यादा है और इसका टेट्राकेन का भी ड्यूरेशन ज्यादा है, तो डिपेंडिंग ऑन कितना देर तक आपको एनेस्थीसिया चाहिए, तो यूज इन द लोअर लिम्ब एंड द पेल्विक सर्जरी। नाउ आई वाज टेलिंग कि लोकल एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थीसिया हम स्पाइनल में दे रहे हैं और हमको चाहिए कि सिर्फ वो नीचे ही रहे, तो कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि ऊपर नहीं जाएगा, हाइट ऑफ द ब्लॉक, 5 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द ब्लॉक। अमाउंट, ड्रग ज्यादा देंगे तो वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, सिंपल सी बात है। अमाउंट, वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर ज्यादा देंगे तो ज्यादा जाएगी, और स्पीड अगर तेजी से आपने दे दिया स्पाइनल एनेस्थीसिया तो भी तो ऊपर जा सकती है। और पोजीशन ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस पोजीशन पे आप दे रहे हैं और किस पोजीशन पे पेशेंट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेरिसिटी, बेरिसिटी सिंपल टर्म में अगर हम देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द ड्रग। ड्रग अगर भारी होगी तो नीचे की तरफ रह जाएगी, तो हाइपरबैरिक ड्रग जो होगी वो नीचे की तरफ रह जाएगी और हाइपोबैरिक ऊपर की तरफ जा सकती है। वी कैन चेंज द बेरिसिटी ऑफ द ड्रग। ग्लूकोज ऐड कर दो तो ग्लूकोज भारी हो जाएगा, तो भारी हो जाएगी, ड्रग नीचे आ जाएगी, और अगर स्टेराइल वाटर के साथ लोकल एनेस्थेटिक दे दे तो वो हाइपोबैरिक हो जाएगी, वो ऊपर जा सकती है। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन द सेम, द कॉम्प्लिकेशन थिंग, अगर लोकल एनेस्थेटिक हम दे रहे हैं वो जहां चाहिए वहां तो जा रही है और जगह भी चली जा रही है, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कर सकती है, अगर जहां से रेस्पिरेटरी मसल्स को इनर्वेट करने वाले फाइबर्स निकल रहे हैं वहां तक पहुंच जाए तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। हाइपोटेंशन हो सकता है क्योंकि ब्लॉकेज ऑफ सिंपैथेटिक आउटफ्लो, एंड हेडेक भी हो सकता है। हेडेक को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हेडेक क्यों होता है? हेडेक इसलिए होता है क्योंकि सीएसएफ बाहर आ रहा होता है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं जब हम छोटे डायमीटर की अगर नीडल यूज करेंगे तो हेडेक मिनिमाइज हो सकता है। एंड हाइपोटेंशन कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग द फुट एंड, कहते हैं हम पैर ऊपर करके लेटने के लिए, बाय मिनिमाइजिंग द फुट एंड। अदर कॉम्प्लिकेशंस कैन बी सी नाउजिया एंड वॉमिटिंग, सेप्टिक मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि बाहर से नीडल डाल रहे हैं, तो इसलिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, नाउजिया एंड वॉमिटिंग। कॉर्डाइक कॉर्नर सिंड्रोम, अगर नर्व डैमेज कर दिया आपने, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज कर दिया तो कॉर्डाइक कॉर्नर सिंड्रोम, और अगर रेयर कॉम्प्लिकेशन है अगर और नर्व डैमेज होगी तो लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द ब्लैडर एंड बाउल। ठीक है, तो एक्सपर्टाइज इज नीडेड, एनेस्थेटिस्ट इज नीडेड, दैट्स लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए। Now coming to the one very important part, epidural, subdural, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो हम दे रहे हैं वो सब एरेक्नॉइड स्पेस पे दे रहे थे। सब एरेक्नॉइड स्पेस कहाँ है? ये देखिए, ये एरेक्नॉइड है, एरेक्नॉइड के अंदर की जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द सब एरेक्नॉइड स्पेस। हम ये बता दें आपको, एक पाया होता है, एक ड्यूरा होता है, एक एरेक्नॉइड होता है। ठीक है, पाया मतलब पास, जो अंदर की तरफ रहेगी दैट इज कॉल्ड द पाया, और जो दूर रहती है दैट इज द ड्यूरा। सबसे दूर रहने वाली ड्यूरा है और बीच में रहने वाली होती है एरेक्नॉइड। ठीक है, और एरेक्नॉइड के अंदर, एरेक्नॉइड और पाया के बीच में जो स्पेस होती है वहां पर सीएसएफ फ्लो करता है, वहीं पर हम देते हैं लोकल स्पाइनल एनेस्थीसिया। मैं लेकिन बात कर रहा हूं एपिड्यूरल। स्पाइनल एनेस्थीसिया कहां दे रहे थे? लंबार में, नीचे की तरफ दे रहे थे। मैं बात कर रहा हूं एपिड्यूरल। एपिड्यूरल जो होगी वो देखिए, ये ड्यूरामीटर है, ये वाली ड्यूरामीटर है, ये ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के अंदर वाला जो पार्ट, जो ड्यूरामीटर के बाहर होगा दैट इज कॉल्ड द एपिड्यूरल, और ड्यूरामीटर के जो अंदर होगा दैट इज कॉल्ड द सबड्यूरल। तो ड्यूरामीटर के बाहर वाला जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड द एपिड्यूरल, और एपिड्यूरल मतलब थोरैसिक में भी, लंबार में भी, सेक्रल में भी, कहीं पे भी दे सकते हैं, इसीलिए थोरैसिक, लंबार एंड कॉर्डल लिखा हुआ है। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया थोरैसिक, लंबार और कॉर्डल में भी दे सकते हैं, लेकिन स्पाइनल एनेस्थीसिया नीचे की तरफ ही दे दिया जाता है। ठीक है, तो थोरैसिक में अगर देंगे तो वी आर एनेस्थेटाइजिंग द थोरैसिक एंड द अपर एब्डोमेन, मतलब ऊपर जो थोरैसिक एंड अपर एब्डोमेन एनेस्थेटाइज होगा। लोअर एब्डोमेन और पेल्विस को करना है तो लंबार देंगे, और अगर कॉर्डल करना है तो कॉर्डल देंगे तो पेल्विस एंड पेरिनियल रीजन। तो वजाइनल डिलीवरी जैसे एक कंसेप्ट है कि वजाइनल डिलीवरी, अगर प्रिसाइज वजाइनल डिलीवरी करना है बिना पेनलेस डिलीवरी जिसे कहते हैं, तो कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया।
देने को स्पाइनल एनेस्थीसिया देके भी हो सकता है, बट प्रिसाइसली दिस इज द कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, दिस इज एपिड्यूरल। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग यूज होती है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में? क्लोरपोकेन है, लिग्नोकेन है और एकिडोकेन, ये 3 ड्रग है। लिग्नोकेन का इंटरमीडिएट, एकिडोकेन का एक इंपॉर्टेंट है, साथ लोकल एनेस्थेटिक के साथ साथ मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट भी होता है इसका, एकिडोकेन का। ठीक, लास्ट है रीजनल ब्लॉक। रीजनल ब्लॉक मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन को हम ब्लॉक कर रहे हैं, वहां पर कैसे पर्टिकुलर रीजन कर सकते हैं? यहां से देखिए आप ड्रग दी जा रही है और यहाँ पे टॉर्निकेट लगा दिया, या वो बीपी वाला कफ है, टॉर्निकेट लगा दिए, तो क्या होगा? ड्रग अगर आप यहाँ दोगे तो ये ड्रग अंदर की तरफ नहीं जाएगी, मतलब अंदर पूरी सर्कुलेशन में नहीं जाएगी। ड्रग विल रिमेन कन्फाइंड टू दिस पार्ट, दिस हैंड ओनली, मतलब जहां भी देना चाहे तो उसे कन्फाइंड हो जाएगी, ड्रग अंदर की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि अब ब्लड से अंदर जा ही नहीं पा रही है, तो यही तरफ रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं रीजनल ब्लॉक, जिसे कहते हैं बेयर्स ब्लॉक ऑल्सो। तो local anesthetic injected IV elastic bandage is applied to separate extremity from blood circulation. Prilocaine यूज किया जाता है, 5 मिनट में इसका एक्शन आ जाता है, लास्ट फॉर 5 to 10 मिनट आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ द कफ। ठीक, मोस्ट सुटेबल एजेंट इज द प्राइलोकेन, तो मतलब विद इन 5 मिनट इसका एक्शन भी आने लग जाता है। अगर कोई हमें पर्टिकुलर प्रोसीजर वहीं पे करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी प्रोसीजर है, बहुत अच्छी टेक्निक है। लिग्नोकेन कैन आल्सो बी यूज्ड, बुपिविकेन एटिडोकेन लेकिन नहीं यूज किया जाता है। टेक्निक यूज्ड फॉर, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन इस टेक्निक को यूज करते हैं अगर मैनिपुलेशन करना है, फ्रैक्चर हो गया है तो अगर उसको मैनिपुलेट करना है तो सिर्फ यहीं पे एनेस्थीसिया चाहिए, तो मैनिपुलेशन कैन इजीली बी डन, और सर्जरी ऑफ द फोरआर्म एंड द हैंड, तो पेशेंट भी कॉन्शियस रहेगा, जहां एनेस्थीसिया चाहिए बस वहीं पे एनेस्थीसिया है और पेशेंट भी ठीक रहेगा, रिकवरी भी अच्छी होती है। दैट्स व्हाई दिस अलग अलग लोकल एनेस्थेटिक के इफेक्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।